حضرات اور محترم ڈاکٹر صاحبان کنسلٹنٹس جو اپنے اپنے شعبوں میں ایکسپرٹس ہیں، ان کا اور ہمارا بڑا کلوز لنک ہے۔ بلوچستان فوڈ اتھارٹی کا جو مین مینڈیٹ ہے وہ فوڈ سیفٹی اور ہائیجین مینٹین کرنا۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں، پچھلے 15 مہینوں میں 3700 مختلف فوڈ یونٹس، جس میں ریسٹورنٹس ہیں، سویٹ شاپس ہیں، فلٹر پلانٹس ہیں، مختلف بزنس یونٹس ہیں، 3700 کے وزٹ کیے جا چکے ہیں پچھلے 15 مہینے میں، اور ان کو امپرومنٹ نوٹسز دیے جا چکے ہیں۔ اور پچھلے 15 مہینوں میں جرمانے کی مد میں پورے بلوچستان سے 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کی ریکوری ہو چکی ہے، اور اسی طرح 22,000 یونٹس مختلف وزٹ کیے جا چکے ہیں پچھلے 15 مہینوں میں۔ صحت کے عازمے کے عالمی دن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ مطلب ہمارا اور اس کا بڑا لنک اسٹیبلش ہوتا ہے فوڈ کے بزنس ریلیٹڈ۔ کسی بھی غیر معیاری خوراک کے استعمال سے اس کا جو میڈیکل کاسٹ ہے وہ کافی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، نہ صرف اس کے حساب سے فائنانشیلی، بلکہ صحت کے لحاظ سے مطلب مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک صحت مند نظام ہاضمہ خوراک کو صحیح طریقے سے ہضم کرنے اور مجموعی طور پر برقرار رکھنے کے لیے غذائی اجزاء کو جذب کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس سلسلے میں فوڈ اتھارٹی نے ہر بزنس کے حوالے سے مختلف SOPs ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ان کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہماری جو فوڈ سیفٹی ٹیمیں ہیں وہ اسی فوڈ بزنس آپریٹر کا وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امپرومنٹ نوٹس دیتے ہیں، فائن کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امپرومنٹ ہے، کام کرنے کی بہت گنجائش ہے۔ ہم نے سب مل کے یہ کام کرنا ہے تاکہ عوام کو صاف خوراک میسر آ سکے اور ان کی ہائیجین مینٹین ہو۔ اس کے علاوہ عوام کو چاہیے کہ وہ معیاری اور لائسنس یافتہ خوراک استعمال کریں، جو مناسب اسٹور ہو، مستند چیزیں خریدیں، بڑی تعداد میں چیزیں نہ خریدیں کہ گھر میں پڑی رہے، ایکسپائر ہو جائے، اسٹینڈرڈ متاثر ہو، کیونکہ کچھ بزنسز میں وہاں پہ ان کے کولڈ اسٹوریج وغیرہ مینٹین رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویب پورٹل بنایا ہوا ہے کمپلینٹ کے لیے، اور ایپ بنائے ہوئے ہیں، ڈیولپ کیے ہوئے ہیں۔ عوام سے گزارش ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز ملے وہ ہمیں رپورٹ کرے، غیر معیاری ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، اسٹینڈرڈ پہ کوئی کمپرومائز ہو، تو ہماری ٹیم میں انشاءاللہ فوری طور پہ وزٹ کر کے جو BFA ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی کرے گی۔ تھینک یو۔ فوڈ اسٹیشن ہوتا ہے، دودھ کو ہی آپ لے لیں، غیر معیاری دودھ کوئٹہ کے تمام جتنے بھی ایریاز ہیں سراؤنڈنگ میں جو ہے فروخت ہو رہا ہے، 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے آپ کی کارروائی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد سریاب روڈ اور اندرون شہر خصوصاً توبی روڈ پر کیمیکل ملا دودھ کھلے عام فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ نے کیا اسٹینڈ سے کیا بنایا ہے، کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ ابھی تو میں نے ریسنٹلی چارج ازیوم کیا ہے، اور ہمارے پاس اپنی ایک سائنٹیفک لیب ہے، اس کو فردر امپروو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی گنجائش ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہے، کیمیکل کی اتنی زیادہ کمپلینٹس نہیں ہے، اتنی زیادہ اسکمڈ ملک ہے۔ اسکمڈ ملک یہ لوگ مکس کر کے اسکمڈ ملک کی فروخت کرتے ہیں۔ یہ ہائیجین کے حوالے سے اتنا مشکل نہیں ہوگا، مطلب اتنا اس کا ہیلتھ پہ زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن سٹل یہ ملاوٹ اور غلط پریکٹس میں آتا ہے۔ اس کے لیے ہماری یہی ہوگی کہ اس کے جو سورس ہے مین، جہاں سے یہ آتا ہے اسکمڈ ملک، ہم وہاں تک پہنچ جائے، چھوٹے چھوٹے دکانوں میں کارروائی کر کے، لیکن مین سورس جب تک ہم اس کا نہیں کاٹیں گے یہ مسئلہ چلتا رہے گا۔ اچھا سر، یہ جو شہر میں ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ وغیرہ، کہ یہیں پر ہی بڑے برانڈس کی جو چیزیں ہیں تیار ہوتی ہیں، جن میں کولڈ ڈرنک بھی اسی طرح ہے، شیمپو وغیرہ بھی اسی طرح ہے، تو ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ لوگوں کے یہاں پر ویڈیوز آتے ہیں کسی گھر میں بنایا جا رہا ہے، اسی طرح لوکل لوگ لگتے ہیں کوئٹہ وغیرہ کے، اب اس کے بعد لوگوں میں خوف بھی ہے کہ یہ جو تمام جو شہر میں چیزیں ہیں یہ تمام جو ہے 2 نمبر ہے یا مضر صحت ہے کوئٹہ میں جو بھی ہے، تو اس کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آتے ایسے ویڈیو جو سوشل میڈیا میں وائرل ہو جاتی ہیں وغیرہ، کہ واقعی یہ کوئٹہ میں اس طرح کی چیزیں ہیں جو بڑے برانڈ کے جو نام پر جو 2 نمبر چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ؟ یہ مس برانڈ کے زمرے میں آتا ہے،
कोई भी घर में बैठ के किसी भी इंटरनेशनल या अच्छी स्टैंडर्ड की जो रजिस्टर्ड कंपनी हो उसके नाम से, ये इसमें फॉर्जरी में आता है, बाकायदा मिस ब्रांड के जमरे में आता है। जैसे ही हमें कोई इतला मिलती है, हमारी टीम जब कार्रवाई करती है या तो उसको सील करना पड़ता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं है, इसका सील करना ऑप्शन है, और दूसरा उस पर फाइन करना और उसको वो चीज़ क्लोज करना पड़ेगा। अगर लीगल है, लाइसेंस याफ्ता है, तो उसको फिर इम्प्रूवमेंट और हमारे लाना पड़ेगा और हमारे स्टैंडर्ड्स पे वो पूरा करना पड़ेगा। इस हवाले से, क्योंकि हमारा काम तो बिजनेस प्रमोशन नहीं है, मिसकंसेप्शन हम दूर कर सकते हैं, इसमें हम काम करेंगे, बिजनेस हम प्रमोट नहीं कर सकते। हमारा काम ये है कि मिलावट शुदा, मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो है ना उसकी रोकथाम करें, अपनी लैब में टेस्ट करें। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ऑथेंटिक जो जगह हैं लाइसेंस याफ्ता, आवाम वहाँ पे उससे ख़रीदारी करें इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ से एक कंप्लेंट अगर आती भी है हमें वो सोर्स मिल जाएगा। अब एक परचून का शॉप है, वो रजिस्टर्ड है, उससे मिस ब्रांडेड गलत चीज़ बरामद हुई है, उसके पास रसीदें होंगी और फिर हम मेन सोर्स तक उसके लिए जा सकते हैं कि मजीद हम कानूनी कार्रवाई BFA एक्ट के तहत कर सकते हैं। सर, एक बहुत बड़ा ब्रांड होटल है जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर गुमान चल रहा है कि इसका मुजर्रशुदा गोश्त पकड़ा गया है और उसके खिलाफ मुहिम भी चल रहा है। सर, आप लोगों की तरफ से कोई हम लोग को बयान या कोई ऐसा वो नहीं आता है तर्दीदी या कंफर्म न्यूज़? सर, ये भी थोड़ा मिसकन्फ्यूजन भी है सर, और ये हकीकत में आप लोगों ने रेड गोश्त का जो है ना मुजर्रशुदा गोश्त पकड़ा है सर? अच्छा, इसमें मैं इस हवाले से मैं ये कहूँ, अभी 2 दिन पहले फिर 3000 किलो तक का गोश्त तलब किया गया, बदबूदार था, बाहर से आ रहा था, और वो उसका ट्रेसेज ही नहीं है कि वो मुर्दा जानवर थे क्या थे, लेकिन वो मुजर सेहत BFA की टीम ऐसी कुछ लाख साहब ने मिलकर कार्रवाई की और उसको तलब कर दिया। हमारे पास ये बिल्कुल कोई सोर्स नहीं है कि ये कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये एक उनकी अपनी बिजनेस मुखालिफिन जो चला रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि हमारा काम ना बिज़नेस को प्रमोट करना है और ना डिस्करेज करना है। हमारा काम है फूड सेफ्टी से, उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करने से। और BFA का ये मैं वाज़ेह कह दूँ, BFA का बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है कि किसी के कारोबार को नुकसान पहुँचाए या किसी के कारोबार को प्रमोट करे, लेकिन हमें ये ट्रेसेस नहीं मिले हैं कि ये मुर्दा को, ये सब स्टैंडर्ड जो गोश्त है जो ज़ायद है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जो दूसरे गोश्त आते हैं वो लोग लाते रहते हैं। ये हमें नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है। मगर सर, ये उसमें जो भी ट्रक आता है वहाँ से सामान लोड हो जाता है, यहाँ तो किसी के नाम पे होता है ना, किसी को तरसील होती है, कोई बेटी होती है, पार्सल पेन, टेलीफोन नंबर, जो वीडियोज आई इसमें ये है ट्रेसेस नहीं होते हैं। 2-2 पार्सल रखते हैं मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम्स हैं, 3-3 पार्सल्स होते हैं, ब्यूटी वगैरह सिंपल सा एक वो होता है साथ, लेकिन ना इसका कोई सर्टिफिकेट होता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या। जैसे ही हमारे इसमें इल्म में आती है ये चीज़ हम पकड़ के ऑन स्पॉट लेबोरेटरी चेक के बगैर ऑन स्पॉट पता चल जाता है बदबूदार है, इससे बदबू आ रही है, उसी टाइम ज़ाया कर देते हैं। कमज़ोर जानवर और बीमार जानवरों का गोश्त जो है एक सरकारी अफसर ने पकड़े थे, लेकिन इसके बाद जो है उन्हें धमकियाँ दी जाती है। अक्सर ये देखने को मिला है कि सरकारी महकमा जो है अपने जो अफसरान हैं उनकी पुष्टपनाही नहीं करती, जिसकी वजह से वो आइंदा जो है अपने काम जो है वो उस तरह खुश असलूबी से नहीं करते जिस तरह पहले करते हैं। तो इस अफसर की अब तक आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए? क्या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उस शख्स जो धमकियाँ दे रहा था उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है? जो लागर जानवर वगैरह है, इसी मैंडेट में है कि वो सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर करके उसको तलब करके और मुज़र सेहत हो। ये जो भी आप बता रहे हैं, ये हमने अपनी टीम को कहा है कि इसको इंक्वायर कर लें। ये असल में लाइफ स्टॉक का की टीम गई थी, उसमें BFA की टीम के साथ नहीं थी। इसमें हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने ऑफिसर्स को कानून के तहत पैट्रनेज देंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस तरह के वाक़यात। अच्छा सर, मुजर सेहत जो चीज़ें खाने से कौन सी बीमारियां जो है फैलती हैं, कौन सी लग सकती है, और आप अभी अपने चार संभाला है तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या है? सबसे ज़्यादा जो हमने डॉक्टर्स को भी सर नोट करें इसके इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा जो मैं BFA के हवाले से बताऊंगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें ब्रीफिंग में इनिशियली जो पता चला है, मुज़र सेहत, कुकिंग ऑयल और घी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो है स्किम्ड मिल्क या दूसरे टाइप के दूध, सब स्टैंडर्ड हो या मुज़र सेहत, ये 2 डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं और इसी पे हम फोकस करेंगे। बाकी डॉक्टर साहिबान
स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और मेडिसिन की, ये इस हवाले से आप लोग एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सर नहीं देखो सही बात है, जैसे मतलब हम वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे इनकी फूड सेफ्टी डे जो है ये मनाई जा रही है 7 जून को, तो हमारी कोलैबोरेशन से मेनली जो बीमारियां फैलती है वो मैदे और उसकी, जिसमें डायरिया सबसे कॉमन है, दूसरे नंबर पे उसकी जो है मतलब हेपेटाइटिस दूसरे नंबर पे है, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियां तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे जो कि इसी फूड से ही रिलेटेड उसकी सेफ्टी से रिलेटेड है, जिसमें फिजिशियन हमारे जलाल साहब हैं जो कि उसमें ज़्यादा वो कमन कहते हैं टाइफाइड फीवर जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, जो इंटेरिक फीवर जो कि आम ज़बान में मैदे बुखार बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये है कि जो एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ है कि बुखार हो रहा है, वट एवर इज द काज कहते हैं कि टाइफाइड है, बहुत सारे वजूहत और भी हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेज उसमें ये टाइफाइड बुखार, जो हमारे यहाँ लोग उसको मैदी बुखार भी कहते हैं, तो उसकी एक वजह ये कि पुअर हाइजीनिक कंडीशन, उसकी फैलने की वजह ये होती है ओरोफिकल रूट है या हमारे जो फूड्स हैं उसकी जो हाइजीनिक कंडीशन है उस तरह नहीं होती, और वहाँ से ही लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन आपको पता है प्रॉपरली ट्रीट ना हो तो उनको इंटेस्टाइन में परफोरेशन, वो कैन लीड टू द इवन कि बहुत लोगों की डेथ भी हो चुकी होती है। और अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें तो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस को रोका जा सकता है। मतलब सिंपल ये टाइफाइड फीवर की एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है वो कैरियर होता है, वो खुद बीमार नहीं होता है, वो उसकी जरासीम को कैरी करता है। तो जैसे इनके वो डोमेन है कि वहाँ की जो रेस्टोरेंट में कि हैंड वॉशिंग और प्रॉपरली फूड हैंडलिंग, अगर वो बंदा प्रॉपरली वो नहीं कर रहा है, जो कि अगर ये वो है तो उससे जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है, जो भी वो होटल में वो जाके यूज़ करेगा, वो कंटेमिनेट होकर उसको बीमार करेगा, वो खुद बीमार नहीं होता है, वो कैरियर होता है। तो इसलिए हेल्थ का और फूड अथॉरिटी का इतना गहरा वो है।